Hello viewers, and I'm sure that आप लोग सब अच्छी health में होंगे, अच्छी तरह. You people are taking good care of yourself, and you are doing work as usual. I know that I have not been posting a video off lately, and the people who know me personally, who have my contact number, they have been calling me to put my views on what is happening in this scenario wherein the media houses, they are actually showcasing or highlighting for just a second. Let me just close this. They have been, highlighting, they are highlighting, they're anticipating something like a world war. Okay, so people, since my views are being expected, so let me tell you something. There are a few analyses that we really need to make. I would say in the year 1991, when the USSR broke down, there were about 14 or 15 countries that broke apart. At that time, there were certain verbal guarantees were given to Russia. And it was told that we shall not be approaching your borders. There were certain guarantees that were given, or discussions that were given to Russia. Now, why this particular dispute has taken place? This dispute has taken place because Russia is now sensing, and it is absolutely, it's not about sensing, rather, let me be very clear, इसमें sense करने जैसा कुछ नहीं है. Ukraine, which is again a broken apart territory of the USSR. The USSR is now willing to join NATO. Now, I don't know कि कितने लोगों को NATO के बारे में पता है. NATO की the full form is, or rather the definition is, North Atlantic Treaty Organization. Now, the Charter of NATO says, as on date that I'm speaking with you, there are 30 countries who are the part of NATO. So, say for example, tomorrow Pakistan become a NATO ally. Pakistan joins NATO. So, an India attack on Pakistan. So, all the NATO countries will take this as an attack on them. So, it is kind of, hegemony or monopoly, whatever you may call it, that they will do it. Russia always, and I admire Russia on this, but not on everything, but yes, on this particular thing, I do admire Russia, कि bhai, we stand apart. There was an angle that was USSR versus US, because I still remember during my childhood, we got to always learn that there are two superpowers in the world. One is USSR and the other one is United States. लेकिन वो जब से break apart हुआ तो उसके बाद से 15 countries निकल गए उसमें से. So imagine. If I may relate this in a better way, this is what Owaisi and his party wanted to do with Hyderabad. इन्होंने करा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया लगा दिया अपनी पार्टी के नाम के पीछे. अदरवाइज इनकी पार्टी भी वही थी, वो तो सरदार पटेल साहब ने इनके सालों के डंडा घुसाया, तब ये सीधे हुए और वहां पर इनकी ऐसी की तैसी करी. खैर, I will keep relating each and everything to the best way I can explain. Otherwise, ये जो हैदराबाद है, ये भी एक पाकिस्तान होता. So coming back to Russia. Now, Russia and Ukraine. Ukraine, after it got, separated from Russia, वहां पर the common man, the civilians, they were not very much inclined towards Russia. And that is the precise reason कि ये सारा conflict शुरू हुआ. अब आज जो वहां पे present government है, और it's not only today, since after, they tried to act smart in 2014 as well with Russia, and Russia captured Crimea पे 2000. If you see the entire map, Crimea or Black Sea, that is very, 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 very significant. Crimea को रशिया ने 2014 में अटैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया. Now what is happening? Russia says that we do not want Ukraine to be part of NATO, for the simple reason that if Ukraine becomes the part of NATO, then the NATO forces would be on their borders, as per the charter of NATO countries. And any country, for that matter, would definitely resist. अब जैसे हमारे साथ लद्दाख में क्या हो रहा है, LAC में क्या हो रहा है, हम लोग तो 70 साल से हम देख रहे हैं कि LAC पे भी क्या हो रहा है. We are watching this. हमारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे पाकिस्तान कब्जा करके, और वहां पर our soldiers
are standing eyeball to eyeball. तो वही सिमिलर सिचुएशन है. उसके बाद से हम 2019 से हम ये देख रहे हैं कि क्या LAC के ऊपर हो रहा है. सो दिस इज ऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल मसल फ्लेक्सिंग. आज की डेट में अगर चाइना ताइवान पे तो अटैक कर नहीं पाया, इंडिया पे कर सकता है. आई एम गिविंग यू माई व्यू पॉइंट. ताइवान जैसा छोटा सा कंट्री जिसको चाइना क्लेम करता है, वहां पर तो अटैक कर नहीं पाया. और इंडिया की तो फोर्सेस, हमारे तो जवान वहां लगे हुए. अब कमिंग बैक टू, आप रिलेट करें तो रशिया को ये मेजर कंसर्न ये है कि भाई अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है तो नेटो फोर्सेस will come on their borders, which means the entire Europe, America, their forces will have free access to Russian territory. Not even if I say territory, but to the borders. Okay, this is one aspect. Or this is a legitimate expression or maybe a concern rather. अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं. अब लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, क्या वॉर होगी, क्या नहीं होगी. तो मैं आप लोगों को सबको एक चीज बता दूं, वी आर ऑलरेडी इन अ वॉर. द वर्ल्ड इटसेल्फ इज इन अ वॉर. वॉर सिर्फ मिलिट्री माइट से नहीं होती है. अब तो वॉर के बहुत सारे तरीके हैं. वॉर कैन बी अ बायोलॉजिकल वॉर विच चाइना हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कोविड. एंथ्रेक्स करके एक सब्सटेंस हुआ करता था जो 90s के अंदर जो पेंटागन तक पहुंच गया था इन एन एनवेलप. That was again a biological war. इतने लोग मरे तब नहीं थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया पाकिस्तान की 4 जंगें हो गई, तब नहीं मरे जितने चाइना ने इकोनॉमीज को और ह्यूमन लाइफ को हिट किया, डैमेज किया बाय स्प्रेडिंग कोविड. अगर आज की डेट में कोई ये कहता है कि कोविड चाइना से नहीं निकला या चाइना का इसके अंदर कोई हाथ नहीं था, सो आई एम रियली सॉरी. आप मान सकते होंगे, बट मैं एज अ कमेंटेटर मैं नहीं मानता. इट इज ऑल प्लान. आज की सिचुएशन ये है कि इफ आई टॉक ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, अब दो प्रांत और द टेरिटरीज ऑफ यूक्रेन have been not declared, rather recognized, let me put it straight, recognized as free countries by Russia. And this is what the best Putin could have done. So he is playing his cards. Biden is playing his cards. Now, okay, I will also come along on one factor. The weakest America that the world might have ever seen is this America. इससे पहले Donald Trump used to be the president, but वो ठीक है. I mean, people never used to like the way, because he had his own style of running the country. I'm not at all supporting and trying to promote Donald Trump. Please don't take me that way. But ठीक है, जैसे भी आप लोग कहना चाहते हैं कि ठीक है, उजरा, I mean, absurd kind of a person, whatever he wanted to, I mean, put across, he used to put across in a very, very different way, which is not very much, conducive and not very much familiar with the world politics, the diplomacy, whatever. But then that guy had this courage. I have also heard, experts, specifically from this Pakistan, calling him a real estate agent. अरे भैया, real estate agent होना कोई गाली है? I don't know. इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, बहुत लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में बिल्डर्स भी कहलाते हैं, जो कॉलोनीज में भी कर रहे हैं. वी अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस, वी नो देम. बट when you become a state head, then you are bound to be governed by the bureaucracy, and then you have to fall in line. Kamala Harris and Joe Biden, if you go through their past statements, if you go to, do a little bit of research, the kind of statements they've been making, they were, anti-India. And why does then Imran Khan is still waiting for a call from Joe Biden, for which the entire Pakistan news channels, their media are doing chest thumping कि खान साहब को कॉल कब आएगा? कॉल तो आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह समझ चुका है कि भैया तुम हमसे पैसा लेते थे, सब कुछ हमसे लेते थे. यू बीन ब्लडी ऑन आवर मनी. What do you mean by IMF? What do you mean by World Bank? It's all United States. It's all United States. Or when you say, acha chaliye, I'm diverting from the topic, coming back to Russia and
यूक्रेन. लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि अभी ये मसल फ्लेक्सिंग चल रही है, इसमें मुझे दिखता नहीं है. ऑन प्रिकॉशनरी नोट, ओके, ऑलराइट, द कंट्रीज आर कॉलिंग ऑफ देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ. इंडिया के स्टूडेंट्स को भी हमने इवैक्यूएट किया है, हमारी गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड, विच इज अप्रिशिएबल. बट देन मुझे, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, क्योंकि देखिए यूएस और रशिया टकराएंगे तो नुकसान दुनिया का होगा. और इसमें और एक और चीज है, वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, द ओनली कंट्री दैट गेन इज चाइना. And precisely why these bastards, so-called communists and CPP, Communist Party of China, they have thrown their weight behind Russia. ये किसी के नहीं हुए. पाकिस्तान को इन्होंने पूरा खरीद के अपना गुलाम बना रखा है. जो ये okay, let me tell you, there is a word उर्दू में, इमदाद. अमेरिका की गोद में जब तक पाकिस्तान बैठा हुआ था, सीटो सेंटो क्या क्या नहीं उसने साइन करा, अलाइन हो गया इधर उधर, व्हाटएवर, तो अमेरिका से तो उनको भीख मिलती थी इमदाद के तौर पे. चाइना इनको भीख नहीं देता है. चाइना कहता है यू वांट, सऊदी ने मांग लिया अपना 24 घंटे के अंदर मेरा $3 बिलियन वापस करो, $2 बिलियन. तो ये भागे हुए गए अपने बाप के पास, नए अब्बा जान के पास. तो वो पैसा देता है, वो पैसा भी तब देता है कि भाई इसके एवज में क्या है. उसके 10 इंजीनियर मारे गए पाकिस्तान में, असैसिनेट हो गए, जो भी थे, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका भी $500-400 मिलियन उनका भी मुआवजा मांग लिया चाइना ने, एंड दे हैड टू पे. जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आने वाले 6 महीने जो हैं ये दुनिया के लिए बड़ा अप डाउन काइंड ऑफ अ सिनेरियो रखेंगे. बट एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूं कि ऑल द इंडियंस, स्पेसिफिकली मैं आई एम नाउ एड्रेसिंग इंडियंस, मैं सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूं. आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एट द सेम टाइम इग्नोर करने की जरूरत है, और बहुत स्ट्रांगली जरूरत है, क्योंकि जो हमारी एंटी नेशनल ताकतें हैं, जो एंटी नेशनल लोग हमारे कंट्री में यहां बैठे हैं, वो इसका दे विल मेक मोस्ट ऑफ इट एंड दे विल ट्राई. आई मीन उनका एजेंडा आज की डेट में एंटी मोदी होते होते, एंटी बीजेपी होते होते वो एंटी इंडिया हो चुका है. तो वो अगर कुछ भी फैलाएंगे तो राहुल गांधी फैलाएगा, प्रियंका गांधी आ जाएगी, कम्युनिस्ट आ जाएंगे, और इनके बहुत सारे चैनल्स हैं. तो मैं अपने फेलो कंट्रीमैन से ये कहना चाहता हूं, अपने देशवासियों से, बिल्कुल किसी अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है. अगर जंग 1% को होती भी है तो आप ये बात मान लीजिए कि ये वर्ल्ड वॉर में तो कन्वर्ट कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती. आज के जो डायनामिक्स हैं बिल्कुल नहीं होगी. टेक माय वर्ड्स, किसी हाल में इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ वर्ल्ड वॉर. मसल फ्लेक्सिंग चल रही है, पॉस्चरिंग चल रही है. पॉस्चरिंग चलती रहती है यार. आप भी मेरे को दिखाओगे अपना दमखम, मैं इतना तगड़ा हूं, मैं भी दिखाऊंगा मैं इतना तगड़ा हूं, फिर आप दोबारा दिखाओगे ये देख मेरे दूसरे बाजू में भी दम है, मैं भी बताऊंगा कि मेरे भी पास भी दूसरा बाजू. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल. क्रूड ऑयल के प्राइस $2 बढ़े, सो व्हाट यार. हमने तो 2007-2008 की मंदी देखी है, बुरा हाल था. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट. जस्ट अ सेकेंड. बहुत बहुत छोटी मेमोरी होती है. तो अगर बहुत छोटी मेमोरी होती है. अगर आप लोग 2007 और 2008 के सिनेरियो में जाएंगे तो बहुत, उस टाइम पे तो जो मंदी थी भाई साहब, ये समझा जाता था कि खाने को भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो गाइज डोंट वरी. यूक्रेन और रशिया का जो ये चल रहा है, ये मसल फ्लेक्सिंग चल रही है, जैसे हमारी LAC पे चल रही है. आज की डेट में अगर हम LOC के ऊपर 2 लाख फौजी लगा देते हैं, जो वाजपेयी जी ने किया था, पाकिस्तान जैसे इनकी औकात नहीं है, दे आर ऑलरेडी बैंकरप्ट. अब ठीक है, देखते हैं. सैंक्शंस लगा रहा है, यूएस लगा रहा है, लेट अस सी. इसके इम्पैक्ट्स तो जरूर आएंगे, बट दैट कैन नॉट बी पुट अक्रॉस एंड ब्लेम्ड ऑन एनी गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड. ऐसा नहीं है. अब अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो वो दुनिया के लिए बढ़ेगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं बढ़ेगा. बट एट द सेम टाइम वी आर ब्लेस्ड विद द गवर्नमेंट दैट वी हैव. और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग मेहनती लोग हैं यार. हम खुद काम करके, हम खुद कुआं खोद के पहले अपने परिवार को पानी पिलाते हैं, फिर देश को भी साथ में पिलाते हैं. कुछ बच जाता है तो हम पीते हैं. सो वी आर कमिटेड, डोंट यू वरी. और मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरह आती हैं, देखिए उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, उनको जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, कोई सा भी न्यूज चैनल हो, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी न्यूज पर्टिकुलर न्यूज चैनल, बट
पीछे से म्यूजिक भी चल रहा है, एनिमेशंस भी चल रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, उसके अंदर ये लगता है कि जैसे अभी जंग होने वाली है, वो रशिया घुस गया, वो ये इधर घुस गया। डोंट गेट हाइपर। इन्होंने, मीडिया ने कोविड में भी यही करा भैया। इनकी भी आप ये समझिए, कोविड में दुनिया मर रही थी, पर दुनिया के मीडिया ने बहुत मोटा नोट कमाया। उससे ज्यादा ऑडियंस इनको कभी नहीं मिली होगी, क्योंकि एवरीबडी वाज अंडर लॉकडाउन। So we need to understand all these things. So any which ways, people, so don't worry at all. कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जहां पर हम ये कहें कि धरती लगे फटने तो आसमान प्रसाद लगे फटने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो यू गाइज नीड टू होल्ड योरसेल्फ। एकदम से प्लीज राशन स्टॉक करने में शुरू कर देना, दारू की बोतलें इकट्ठी मत करना शुरू कर देना, पानी की बोतलें और ये ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर, डोंट डू दैट। इट्स ऑल ओके, इट्स फाइन। देखेंगे, जब जो होगा तब देखेंगे। गवर्नमेंट को सुनो, गवर्नमेंट क्या डायरेक्टिव्स दे रही है उसको सुनना जरूरी है, सिंपल। Meanwhile, people, I would like to thank all of you, all my subscribers, all my viewers, the way you people are showing confidence in my YouTube channel and the kind of response that you people gave on one of my shorts on hijab. Absolutely fantabulous. Thank you, people. So I shall be connecting in, maybe tomorrow or day after for more insights. One last thing. This is, whatever I've just spoken is my viewpoint. If you differ with me, please leave your comments and I will address them. Thank you. Stay safe. God bless you all. Take care.